کرنے کے لیے مؤثر ضابطۂ اخلاق بنائے۔ ہم نے انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے بھی خاص طور پہ 2018 کے انتخابات کے تجربے میں جس طرح RTS سسٹم کو استعمال کیا گیا، اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایک ایسا خودکار نظام بنا رہے ہیں کہ جو الیکشن کے مانیٹرنگ کے لیے بھی اور نتائج کو مرتب کرنے کے لیے بھی خودکار بھی ہوگا اور شفاف بھی ہوگا، تاکہ ان شکایات کا ازالہ ہو سکے جو کہ ہم نے 2018 کے اندر جن کو دیکھا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے ووٹر رجسٹریشن اور ان کے انتخابی عمل میں شمولیت کے لیے بھی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے، چونکہ کسی بھی ملک کے انتخابی عمل میں اس کی آدھی آبادی کو اس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، لہذا خواتین کی انتخابی عمل میں مؤثر شمولیت کے لیے خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن اور خواتین ووٹرز کا ووٹ کاسٹ کرنا، اس کے لیے الیکشن کمیشن مؤثر حکمت عملی مرتب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے، تاکہ کسی بھی جگہ مذہب کو، لسانیت کو یا کسی بھی انتہا پسندی کے نعرے کو یا مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے عمل کی مؤثر طور پہ روک تھام کی جا سکے، اور یہ ہیٹ بیس سپیچ جو ہے پھر تشدد کی طرف لے کے جاتی ہے، جس سے الیکشن میں وائلنس آتا ہے۔ اسی طرح انتخابات کے اندر جو پولنگ سکیمز ہیں اور جو اس کے انتخابی مراحل ہیں ان میں بھی شفافیت لانے کے لیے ہم نے مختلف تجاویز الیکشن کمیشن کے پیش نظر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ الیکشنز کو جلد از جلد کرنے کے لیے، بر وقت آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے لیے ایک سنگ میل ہیں، چونکہ جو ملک کے معاشی چیلنجز ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ایک منتخب حکومت، آئینی اور جمہوری طور پہ ایسی حکومت جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، وہ آ کے ملک کی معیشت کو اصلاحات کے ذریعے مستحکم کرنے کے لیے اپنا جمہوری کردار ادا کرے، اور ووٹر لسٹوں کو سائملٹینیسلی جو ہے وہ ان کی تیاری شروع کی اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ووٹرز لسٹ ہے ان کے لیے بھی الیکشن کمیشن اندراج کے لیے تاریخ کا اعلان کرے، چونکہ ڈی لمیٹیشن کے نتیجے میں دورانیہ 90 دن سے طویل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وہ ووٹرز جو 18 سال کی عمر کو پورے ہوں گے اور بالخصوص جو ووٹرز جن کا اندراج اب تک نہیں ہو سکا، ان کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے اور نادرا کو ہدایت کرے کہ وہ بھرپور طریقے سے نئے ووٹرز کے شناختی کارڈ بنانے کے لیے اور ان کے ووٹرز کے طور پہ اندراج کے لیے کردار ادا کریں، اور یہ عمل 14 دسمبر تک مکمل ہو جائے سائملٹینیسلی۔ ہاں، اور یہ سارا عمل جو ہے سائملٹینیسلی 14 دسمبر سے پہلے مکمل ہو جائے، تاکہ جہاں حلقہ بندی مکمل ہوگی اس کے ساتھ انتخابی فہرستیں بھی مکمل ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک کٹ آف ڈیٹ کے اوپر جو ووٹرز لسٹ شائع کرے، وہی ووٹرز لسٹ کو یقینی بنایا جائے کہ وہ الیکشن کے عملے کے پاس اور جو امیدوار ہیں ان کے پاس ہوں، تاکہ پولنگ ڈے کے اوپر کسی قسم کی ووٹرز لسٹ کی ڈسکرپنسی کسی ووٹر کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہ کر سکے۔ یہ بتائیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا کوئی طے کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، 13 جنوری 2022 کو
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, उसमें यह फैसला किया गया कि अगला इलेक्शन 2023 का 7वीं मरदमशुमारी के तहत होगा, और जो ही 7वीं मरदमशुमारी के नताइज मुरतब होंगे उन्हें इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाए, उसे मुतला किया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में इंतखाबात करा सके। और ये जो सेंसस का नतीजा इलेक्शन कमीशन को देने का मतलब क्या है? आइन इस बारे में वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी लेटेस्ट नोटिफाइड सेंसस है उसके नतीजे में हल्का बंदी करनी है। तो लिहाजा पीटीआई का ये मुतालबा कि वो उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज करे कि जो खुद उसके अपने सीसीआई के फैसले के मुताबिक है, ये सियासी नारा तो हो सकता है, इसका आइन और कानून से ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो पीडीएम की जमातें हैं वो सब सीसीआई के उस इजलास में मौजूद थीं जहां पर इत्तफाक राय के जरिए फैसला किया गया कि नए मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई और उसको इलेक्शन कमीशन को मुतला किया गया। मैं समझता हूं कि अब हमारे लिए जरूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाजे हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के जरिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इलेक्शन का इनेकाद जितनी जल्द मुनक्कद हो सके उतना वो मुनक्कद किया जाए। अच्छा, 14 दिसंबर को ये मुकम्मल होगी हल्का बंदिया, तो इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उसकी क्या दिक्कत क्या? नहीं, ये 14 दिसंबर आज जो जाहिद अहमद साहब ने और हम सब ने तजावीज़ दी है राना सनाउल्लाह साहब, वो यही थी कि इस अमल को तेज़ किया जाए और ये 14 दिसंबर से पहले मुमकिन है। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट में एक प्रोसीजर दिया गया है कि वो जो शेड्यूल है वो 54 रोज़ का तकरीबन टाइम बनता है। तो अगर ये दिसंबर के अवाइल या नवंबर के अवाखिर में होता है तो उसमें 54 दिन आप तो 14 दिसंबर प्लस 4 डेज तो डेट निकल आएगी है। लेकिन अगर ये पीछे अमल आता है ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, थैंक यू जी। फाइनल आपके ख्याल में हल्का बंदिया की है, तैयारी की है, कौन सी तारीख को एक्सपेक्टेड डेट इलेक्शन की हो सकती है? 14 दिसंबर प्लस 54 डेज। जैसे आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि अगर हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का कानून और आइन का शेड्यूल है जिसके अंदर इंतखाबी अमल ने मुकम्मल होना है। तो डेट निकाल लें, खुद उससे डेट निकाल सकते हैं। 14 दिसंबर के बाद 54 दिन। 14 से पहले मोहम्मद है हमारे बांग्लादेश के रिपोर्टर को वॉइस ऑफ अमेरिका तक जहाद को कम करने के लिए मौसर ज़ाब्ता अखलाक बनाए। हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए भी ख़ास तौर पे 2018 के इंतखाबात के तजुर्बे में जिस तरह RTS सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, अपने खदशात का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो एक ऐसा खुदकार निज़ाम बना रहे हैं कि जो इलेक्शन के मॉनिटरिंग के लिए भी और नताइज को मुरतब करने के लिए भी खुदकार भी होगा और शफाफ भी होगा, ताकि उन शिकायत का अजाला हो सके जो कि हमने 2018 के अंदर जिनको देखा है। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा किया है कि खवातीन के वोटर्स रजिस्ट्रेशन और उनके इंतखाबी अमल में शमूलियत के लिए भी मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए, चूँकि किसी भी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा खवातीन की इंतखाबी अमल में मौसर शमूलियत के लिए खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन और खवातीन वोटर्स का वोट कास्ट करना, इसके लिए इलेक्शन कमीशन मौसर हिकमत अमली मुरतब करे। साथ ही साथ हमने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उनके पेश नज़र हेट स्पीच के हवाले से मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए, ताकि किसी भी जगह मज़हब को
लसानियत को या किसी भी इंतहा पसंदी के नारे को या मुखालफिन को टारगेट करने के अमल की मौसर तौर पे रोकथाम की जा सके, और ये हेट बेस्ड स्पीच जो है फिर तशद्दुद की तरफ लेके जाती है, जिससे इलेक्शन में वायलेंस आता है। इसी तरह इंतखाबात के अंदर जो पोलिंग स्कीम्स हैं और जो उसके इंतखाबी मराइल हैं, उनमें भी शफाफियत लाने के लिए हमने मुख्तलिफ तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के पेश नज़र रखी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। और वोटर लिस्टों को साइमल्टेनियसली जो है वो जी उनकी तैयारी शुरू की इसी जाए। तरह हमने ये भी कहा है कि जो वोटर्स लिस्ट है, इनके लिए भी इलेक्शन कमीशन इंदराज के लिए तारीख का ऐलान करे, चूँकि डिलिमिटेशन के नतीजे में दौरानिया 90 दिन से तवील हो गया है, तो इसके लिए वो वोटर्स जो 18 साल की उम्र को पूरे होंगे और बिलखसूस जो वोटर्स जिनका इंदराज अब तक नहीं हो सका, इनके इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे और नादरा को हदायत करे कि वो भरपूर तरीके से नए वोटर्स के शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और उनके वोटर्स के तौर पे इंदराज के लिए किरदार अदा करें। और ये अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाए साइमल्टेनियसली। हाँ, और ये सारा अमल जो है साइमल्टेनियसली 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल हो जाए, ताकि जहां हल्का बंदी मुकम्मल होगी उसके साथ इंतखाबी फहरिस्तें भी मुकम्मल हों। और हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक कट ऑफ डेट के ऊपर जो वोटर्स लिस्ट शाये करे, वही वोटर्स लिस्ट को यकीनी बनाया जाए कि वो इलेक्शन के अमले के पास और जो उम्मीदवार हैं उनके पास हों, ताकि पोलिंग डे के ऊपर किसी किस्म की वोटर्स लिस्ट की डिस्क्रिपेंसी किसी वोटर को वोट देने के हक से महरूम ना कर सके। इकबाल साहब ये बताएं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का कोई जायका और पार्लियामेंट्री सोसाइटी का मुद्दा था, जो बड़ी उस पर हमें बातें होनी क्या रहे। देखिए, मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान का एक आइन है और एक कानून है। जहां तक पीटीआई का सवाल है, 13 जनवरी 2022 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की, उसमें यह फैसला किया गया कि अगला इलेक्शन 2023 का 7वीं मरदमशुमारी के तहत होगा, और जो ही 7वीं मरदमशुमारी के नताइज मुरतब होंगे उन्हें इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया जाए, उसे मुतला किया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में इंतखाबात करा सके। और ये जो सेंसस का नतीजा इलेक्शन कमीशन को देने का मतलब क्या है? आइन इस बारे में वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी लेटेस्ट नोटिफाइड सेंसस है उसके नतीजे में हल्का बंदी करनी है। तो लिहाजा पीटीआई का ये मुतालबा कि वो उन सेंसस को इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज करे कि जो खुद उसके अपने सीसीआई के फैसले के मुताबिक है, ये सियासी नारा तो हो सकता है, इसका आइन और कानून से ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो पीडीएम की जमातें हैं वो सब सीसीआई के उस इजलास में मौजूद थी जहां पर इत्तफाक राय के जरिए फैसला किया गया कि नए मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई और उसको इलेक्शन कमीशन को मुतला किया गया। मैं समझता हूं कि अब हमारे लिए जरूरी है कि जो अपने आइन और कानून के तकाजे हैं उनकी रोशनी में हल्का बंदी के अमल को इलेक्शन कमीशन के जरिए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इलेक्शन का इनेकाद जितनी जल्द मुनक्कद हो सके
उतना वो मुनक्कद किया जाए। अच्छा, साहब ये फरमा दीजिएगा, ये जो हल्का बंदिया 14 दिसंबर को ये मुकम्मल होगी हल्का बंदिया, तो इसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे, उसकी क्या दिक्कत क्या होगी? नहीं, ये 14 दिसंबर आज जो जाहिद हामिद साहब ने और हम सब ने तजावीज़ दी है राना सनाउल्लाह साहब, वो यही थी कि इस अमल को तेज़ किया जाए और ये 14 दिसंबर से पहले मुमकिन है। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट में एक प्रोसीजर दिया गया है कि वो जो शेड्यूल है वो 54 रोज़ का तकरीबन टाइम बनता है। तो अगर ये दिसंबर के अवाइल या नवंबर के अवाखिर में होता है तो उसमें 54 दिन आप तो 14 दिसंबर प्लस 54 डेज तो डेट निकल आएगी। है, लेकिन अगर ये पीछे अमल आता है ये तो कोई 15 ऐसी बात नहीं और आ है। जाए। हाँ, थैंक यू जी। आपके ख्याल में हल्का बंदिया की क्या तैयारी की है, कौन सी तारीख को एक्सपेक्टेड डेट इलेक्शन की देखिए, 14 दिसंबर प्लस 54 डेज। जैसे आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि अगर हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद 54 दिन का कानून और आइन का शेड्यूल है जिसके अंदर इंतखाबी अमल ने मुकम्मल होना है। तो डेट आप निकाल लें। खुद उससे डेट निकाल